وفا تو اس زمانے میں تھی جب مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے۔ وفا تو اس زمانے میں تھی جب مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے۔ اب تو گھر بھی پتھر کے ہیں اور لوگ بھی پتھر کے۔ جعفر شیرازی آپ سب کو سلام عرض کرتا ہے۔ رات کا 1 بجا تھا، سخت سردیوں کے دن تھے، ہم سب چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت، لحاف اوڑھے سوئے ہوئے تھے۔ اچانک رات کو 1 بجے کے وقت دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ وہ دور تھا، مٹی کا دور تھا، جب یہ انٹرکام یا کیمرے یا یہ چیزیں دروازوں پہ نہیں لگتی تھی، ڈائریکٹ دستک دی جاتی تھی، کیونکہ رشتے مضبوط ہوا کرتے تھے۔ انہیں پتا ہوتا تھا کہ ہم جس کے پاس آئے ہیں وہ ہمیں بہت عزت دے گا، رسپیکٹ دے گا۔ تو بہرحال کھڑکی سے ہم نے جلدی سے جھانکا کہ دیکھے کون ہے اس وقت آیا ہے۔ تو باہر دیکھا تو میرے کزنس، بھائی بہن اور ان کے والدین سب کے سب باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ رات کے 1 بجے جو دوسرے شہر میں رہتے تھے وہ وہاں سے آئے تھے۔ ہم نے خوشی کے مارے ہماری تو چیخیں نکل گئی۔ ہم بھول گئے کہ کتنی گہری نیند سوئے تھے، کیا کیا خواب دیکھ رہے تھے، سب کچھ بھول گئے۔ فوراً دروازہ کھولا اور سب آئے، والہانہ انداز میں ہم سب ملے۔ ایسا لگا کہ جیسے ایک عید ہو گئی ہے ہمارے یہاں، چاند رات ہے ہمارے یہاں، ایک رونق سی بڑھ گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مہمان رحمت ہوا کرتے تھے، زحمت نہیں۔ صرف ایک نقطہ لگانے سے زحمت ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال بہت خوش تھے ہم بچے سب آپس میں کھیل کود میں باتوں میں لگ گئے، بڑے اپنی باتوں میں لگ گئے۔ اس کے بعد میری والدہ نے کہا کہ بھئی کہ دور سے آئے ہیں تو انہیں بھوک بھی لگی ہوگی۔ مہمان منع کرتے رہ گئے، لیکن وہ کچن میں گئیں اور انہوں نے پراٹھے اور آملیٹ بنانے شروع کر دیے۔ ہم سب گھیرا ڈال کر کچن کے باہر بیٹھ گئے، باتیں بھی کرتے جا رہے تھے، ہنس کھیل بھی رہے تھے، پراٹھے گرم گرم آ رہے تھے۔ رات کا 1-2 بجے کا ٹائم تھا۔ میری والدہ کے چہرے پر، ان کے ماتھے پر ایک بھی شکن نہیں تھی۔ ایک خوشی سے وہ جو ہے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ ہاں، وہ دور تھا جب پتھر نہیں تھے اور لوگ بھی پتھر جیسے نہیں تھے، موم کی طرح نرم تھے۔ تو بہرحال وہ وقت گزر گیا۔ آہستہ آہستہ وہ دور آنے لگا جب خوبصورت محل بن گئے، ہم سب ادھر ادھر ہو گئے، پتھروں نے جگہ لے لی، ہمارے دل بھی پتھروں کی طرح ہونے لگ گئے۔ دروازوں پہ کیمرے لگ گئے، انٹرکام لگ گئے۔ وہ رشتہ دار جو بنا بتائے اچانک آ جایا کرتے تھے اور ہمیں سرپرائز دیتے تھے اور ہمیں خوشیاں دیتے تھے، اب انہیں پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ گھر پہ ہوں گے، ہم اتنے فلانے وقت پہ آنا چاہتے ہیں، آپ اویلیبل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ یہی ہمارے رشتوں کی کمزوری ہے۔ وہ بے تکلفی جو تھی نا رشتوں میں، وہ ختم ہو گئی، تکلفات آ گئے۔ فلاں کو یہ برا نہ لگ جائے، فلاں کو یہ برا نہ لگ جائے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ہمارا رشتوں میں جو خلل واقع ہوتا ہے وہ ہے عدم برداشت۔ ہمیں برداشت کی قوت ختم ہو چکی ہے، معاف کیجیے گا۔ وہ ختم اس طرح سے ہوئی ہے کہ ہم اکثر ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ معمولی سی بات پر جو ہے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ وہ تو ایک اداکاری ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارے ذہن جو ہے اس کو اندر قبول کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنوں سے ہی الجھ پڑتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ سامنے والے سے ہمارا رشتہ کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، سیاست کے معاملات ہوں، کسی بھی قسم کے معاملات ہوں، کتنے گھر ایسے ہیں جہاں ایک دوسرے سے لا تعلقی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کچھ زیادہ ہی پروفیشنل ہو گئے۔ ہم نے رشتوں میں بھی کچھ
कहना चाहिए कि दर्जे मुकम्मल कर लिए कि जनाब फलाना शख्स है वो थोड़ा गरीब है, कम पढ़ा लिखा है, फलाना शख्स है बहुत हाई लेवल का है, उससे कैसे ताल्लुकात रखते हैं, वो गरीब जब घर आता है तो हमें उससे किस तरह से मिलना है, और जो ताल्लुकात वाला हाई लेवल का शख्स हमारा रिश्तेदार घर आता है तो हम कैसे उससे मिले। ये सब चीज़ें अब हमारे जहनों में रहती हैं। और तो और यकीन करें, ऐसा भी हुआ है कि फेसबुक पर किसी ने पोस्ट डाली और उसे किसी रिश्तेदार ने, किसी ने इग्नोर किया, नहीं देखा किसी वजह से, तो हम उससे भी नाराज़ हो गए कि जनाब बेवफा हो गया हमारा रिश्तेदार। तो रिश्तों को अगर बचाना हो ना, तो सबसे बड़ी चीज़ है दरगुजर। हम इंसान हैं, आप भी इंसान, मैं भी इंसान, हम में से कोई भी 100% नहीं है। हम सब में कोई ना कोई खामी ज़रूर होती है। अगर खामी ना हो तो हम तो फरिश्ता बन जाए। तो उस खामी को जब दूसरा शख्स देखता है तो वो बजाय इसके कि उसे दरगुजर करे, इग्नोर करे, वो उसे बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेता है। हालांकि वो ये नहीं सोचता कि हो सकता है ये खामी उसमें भी हो। तो बेहतर ये होगा, अगर हमें रिश्ते बचाने हैं ना, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हमें दरगुजर से काम लेना होगा, हमें इग्नोर करना होगा। जब तक हम ये चीज़ें नहीं करेंगे हमारे रिश्ते मजबूत नहीं होंगे। और रिश्तों को जोड़ना या मजबूत रखना जो है ना, वो कोई बटन सिस्टम नहीं है कि हमने बटन ऑन किया तो रिश्ते ऑन हो गए, बटन ऑफ किया तो ऑफ हो गए। नहीं, रिश्तों को जोड़ने के लिए एक बड़ा लंबा टाइम चाहिए होता है। या आजकल के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, पुराने ज़माने की तो बात छोड़ें आप। उस ज़माने में तो सबसे अनमोल चीज़ जो थी वो रिश्ता होता था, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे खून का हो, चाहे पड़ोसी का हो। अब ये चीज़ें नहीं रहीं। अब तो पड़ोस में रहने वाले भी एक दूसरे से अजनबी होते हैं। अब तो दोस्त भी इस बात पर दूर हो जाते हैं कि कहीं हमारा गरीब दोस्त है उससे कुछ मांग ना ले। तो ये एक ऐसा काम है जो कि बहुत मुस्तकिल मिजाजी से हम करें तो हम अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। और उसके लिए हमें सबसे पहले तो हमें अपने ऊपर उसको लागू करना होगा कि हम हर चीज़ को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को अहमियत दें, उनकी बात गौर से सुने, उनकी कोई गलती हो, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो, उसे माफ़ करें, क्योंकि माफ़ तो अल्लाह ताला भी कर देता है बड़े बड़े गुनाह। हम तो इंसान है ना, तो उन्हें माफ़ करें। आपसे कोई गलती होती है तो माफ़ी मांगने में पहल करें। यकीन करें, वो उस शख्स का रिश्ता बहुत मजबूत होता है जो गलती ना होने के बावजूद भी सिर्फ रिश्ते बचाने के लिए माफ़ी मांग ले। वही एक बहुत बड़ा इंसान होता है। तो रिश्तों को अगर बचाना है तो एक दूसरे को की गलतियों को दरगुजर करें और एक दूसरे का एहसास करें, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहें। जी हाँ, कांटेक्ट में रहें ताकि कभी किसी का दुख सुख हो तो हमें पता चले और उसमें शरीक हो। एक ज़माना था जब कोई बीमार पड़ता था तो उसे देखने जाना जो है वो बड़ा हमारा फ़र्ज़ बन जाता था। और हम फल और बिस्किट, मुख्तलिफ़ चीज़ें लेकर उनके घर पे जाया करते थे। लेकिन अब कुछ ये हो गया है कि हम फ़ोन पर उनसे खैरियत पूछ लेते हैं, या फिर अक्सर बीमार होने वाले भी ये बातें छुपा देते हैं कि उन्हें कोई तकलीफ़ है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि खामखा के लोग हमारे घर पे आएँ। ये हमारा मिजाज बदल गया है। पहले लोगों के आने पे खुशी होती थी, अब हमें जो है परेशानियाँ उठानी पड़ती। तो अब हम बजाय फ्रूट ले जाने के, कुछ ले जाने के हम एक फूलों का गुलदस्ता दे देते हैं, जिससे मरीज़ को कोई फ़ायदा नहीं होता। फ्रूट से तो कम से कम वो जूस बनाकर पी सकता है। एक हमारी और भी बहुत बड़ी खामी है,
जिन्होंने रिश्तों को कमज़ोर किया है। और वो ये है कि कोई भी मौका आता है ना शादी ब्याह का, तो हम जो हमारे बहुत ही हाई लेवल के रिश्तेदार होते हैं, हम उन्हें जो तोहफा देते हैं वो बड़ा कीमती किस्म का देते हैं, चाहे वो कैश हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कि साहब वो बहुत बड़ा आदमी है। और अगर हमारा कोई गरीब रिश्तेदार होता है तो हम पैसा होते हुए भी हम उसे जो है छोटा सा कोई तोहफा दे देते हैं कि चलो वो गरीब है ना। वो ज़माने भी थे जब किसी मोहल्ले में पड़ोस में किसी के यहाँ खुदा न खास्ता कोई मौत हो जाती थी तो घर वालों को कुछ नहीं करना पड़ता था, मोहल्ले वाले, हाँ मोहल्ले वाले सब कुछ करते थे। टेंट लगाते थे, दरिया बिछाते थे, कुरान शरीफ ला के रखते थे और बंदोबस्त किया करते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि जिसके घर में ये दुख वाली बात हुई है वो इस वक्त अपसेट होगा, हमें ये सब कुछ संभालना है। क्योंकि उस वक्त छोटे छोटे घर हुआ करते थे, एक दूसरे का दुख दर्द बांटा करते थे। उसके बाद जब हम बड़े बड़े घरों में चले गए ना, पत्थरों के घरों में, तो फिर हम बिल्कुल एक दूसरे से लाताल्लुक हो गए। अब हमें अगर पता भी चलता है ना कि किसी क्या कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि रस्मी तौर पे उससे ताज़ियत करके बात को ख़त्म कर दें। तो दोस्तों, अपने रिश्तों को बचाएं। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, जितने आपके मोहब्बत करने वाले आपके आसपास होंगे उतना ही आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, उतना ही ज़िंदगी से आपको प्यार होगा। तो आज हम अपने इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। फिर इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ज़िंदगी रही तो मुलाकात हो। लेकिन मेरा और आपका रिश्ता जो है ना वो बहुत मजबूत है। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो और मजबूत हो जाएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भी हमारा रिश्ता सलामत रहेगा, हमारी मोहब्बत सलामत रहेगी।